Okay, students, welcome back. So, first of all, let me tell you, on Monday, your science test is there. You all have got the test schedule, ना? सब बच्चों को मिल गया है ना test schedule? On Monday, your science test is there. So, science का test किस चीज का है? You can please note down test of MCQs of lesson 1. Clear? Only MCQs. मंडे को टेस्ट के बाद आप अपने पास कर लोगे एंड ट्यूसडे को वी विल डिस्कस द टेस्ट इन द क्लास. ओके, इज दैट क्लियर? चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. सो वी वर ऑन प्रोटीन्स. व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर body building food, building blocks. They are building blocks, right? They are the building blocks. Yes, कृतज्ञा? मैम मैंने आपसे पूछना था कि मैम जो टेस्ट होगा मैम वो 30 मिनट पे आएगा मैम या क्लास WhatsApp. Okay? ओके मैम, थैंक यू मैम. Yes. Okay, let us start again. Proteins, they are the building blocks of the body. Why? Because as I told you, they help to build our body. They repair the cells, damaged cells and tissues. They help in the growth of body. That is why they are known as building blocks. Beta, please start your cameras. That is why they are known as building blocks. Now coming to functions. Functions of proteins. What are the functions? What are the functions of a protein? They are important for the growth of body because they help in repairing of cells and tissues. Important for growth of body, right? And number 2, they help in repairing and replacing body cells and tissues, right? Body cells and tissues. Is that clear to all? Is this fine? These are the functions of proteins. Now, bache, next is sources. Sources. Sources, again, we have plant sources as well as animal sources. Animal sources. We have plant sources as well as animal sources. For sources, we have to open the book, page number 12, NCERT. वहीं से कर लेंगे हम. हाँ जी. You can see figure 2.5. Can you see the figure? Can you see the figure 2.5? Hurry up. Hurry up, hurry up. Books ले आओ. खोल ली book. हाँ जी. तो you can see plant sources और animal sources दिए हुए हैं अलग अलग से. Plant sources क्या हैं? ग्राम, मूंग, तुअर दाल, beans, soya beans, peas. Can you see? निश्चय, can you see this? ये सारे plant products हैं, right? So they are the plant sources. दाल्स हैं basically इसमें that are giving us proteins. Then come animal sources. Animal sources कौन से हैं? From where we are getting proteins? Meat, fish, paneer, milk, eggs. So hopefully it is clear to all, right? एक चीज
मैंने और बतानी है। कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे मेरे से फोन करके कि मैम ये उसमें भी है और ये उसमें भी है। ये जरूरी नहीं है कि एक फूड आइटम उसमें सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट हो। कई फूड आइटम्स में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। लाइक एग, एग में प्रोटीन्स भी होते हैं एंड फैट भी होती है। राइट, इज दैट क्लियर? हाँ जी। सो आई होप सोर्सेज आर क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट आ गया टेस्ट। टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट जनरली कम्स इन एग्जाम्स। Test of proteins. How will you test the presence of protein in a given food item? आपको कोई भी food item दे दी गई है and you have been told to test whether it has protein or not. तो हम आज टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है? रेडी फॉर द टेस्ट? पहले मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी, देन आई विल शो यू ऑन द बोर्ड, ओके, कि किस तरह लिखना है। सो स्टूडेंट्स, you know what is this? This is test tube stand and this is test tube. I hope everybody has seen this in the lab. हम पहले भी ये देख चुके हैं in our previous classes, है ना? But I don't know आपने यूज किया या नहीं किया, but हम आपको दिखा चुके हैं, है ना? So we will be taking one test tube. Nishchay, are you watching me? We have taken one test tube. Now this is a food item to be tested. लिम्का नहीं है, इसमें दूध है, milk. We are taking milk to test whether milk has protein or not. ये I have added the milk, right? ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मिल्क दिया हो, आपको कोई भी फूड आइटम दी जा सकती है, राइट? अब इस मिल्क में आई विल ऐड सम वाटर। मैं ये थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूं, जस्ट दिस मच स्मॉल वाटर, एंड मिक्सिंग इट, राइट? देन आफ्टर एडिंग वाटर टू इट, I will add just 2 drops of copper sulfate solution. ये क्या है मेरे हाथ में? Copper sulfate solution. I am adding just 2 drops. Just see, I am adding 2 drops of copper sulfate and shake it well. What you have to do? You have to shake it well. Which solution we have added? We have added copper sulfate. This is the chemical formula of copper sulfate. Remember it. What is this? Cu means copper, SO4 means sulfate. Copper sulfate, right? Now one more solution we have to add. This is caustic soda. This is caustic soda. Common name is caustic soda, right? Otherwise ये इसका common name है. Chemically इसको बोलते हैं, ये copper sulfate था ना, मैं copper sulfate लिख देती हूँ. Copper sulfate, blue color का जो solution था. Then caustic soda क्या है? NaOH, इस तरह, और इसका नाम होता है, कॉस्टिक सोडा को हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड. बेटा सोडियम इज Na. What is sodium? Sodium is Na and hydroxide is OH. Right? Now I am going to add little bit of sodium hydroxide और caustic soda. थोड़ा सा ऐड करूंगी मैं, वैसे ड्रॉपर से डालना चाहिए, ठीक है?
अबाउट 10 ड्रॉप्स हम डालते हैं इसके, राइट। चलिए, आफ्टर एडिंग शेक इट वेल, इसको अच्छे से शेक करना है, ठीक है। मैंने कहा रख दूं, टूटना ना जाए। हाँ जी, यू कैन सी कलर चेंजेस हो रही हैं। कैन यू सी द कलर चेंजेस? वायलेट कलर आ गया ऊपर, ये देखो। अगर हम इसको अच्छे से शेक करें, कैन यू सी द वायलेट कलर? कैन यू सी? हल्का सा वायलेट आ गया है। इफ वी विल कीप इट फॉर 5 मिनट्स so it will turn more violet, dark, prominent. So this violet color, if we can see the violet color, it means proteins are present in the given food item. अगर हमें टेस्ट के बाद if we can see violet color, तो it means उस आइटम में प्रोटीन्स हैं। if violet color is not there, something else is there, violet या पर्पल, राइट, किसी टोन में अगर कलर आता है, it means it is presence of protein is there. If no purple color is there, no violet color is there, some other color is there, it means protein is absent, right? टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको दोबारा ये टेस्ट अभी समझाने वाली हूँ। हाँ जी तोएश, बोलिए बेटा। मैम जो आपने कहा कि सोडा डालना है मैम, वो हम नॉर्मल सोडा भी डाल सकते सोडा हैं? का बोला मैंने, बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। दिस इज कॉस्टिक सोडा, इसका नेम होता है कॉस्टिक सोडा। दिस इज नॉट द नॉर्मल सोडा, राइट तोएश? डोंट मिक्स द थिंग। यस। Okay. Okay, students. Hopefully it is clear to all. Don't take tension. I am going to repeat again. हमने इस टेस्ट में क्या किया, समझ में आया थोड़ा बहुत? Have you got it? शांतनु, समझ में आया बेटा थोड़ा सा? शांतनु, I cannot see you. Show me your face. हाँ जी, समझ में आया बेटा? ओके, अब मैं दोबारा बताने जा रही हूं टेस्ट। फटाफट से एक बार बता दूंगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, राइट? ओके, चलिए, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ टेस्ट ट्यूब। दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। इसमें वी एडेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आइटम जो हमने टेस्ट करनी है, ठीक है। नाउ ऐड वाटर टू इट, इसमें वाटर ऐड किया। देन आफ्टर दिस वाटर ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, add what you have to add 2 to 3 drops of copper। देखो मैंने C कैपिटल डाला, U स्मॉल डाला। 2 to 3 drops of, इसी तरह S कैपिटल, O भी कैपिटल, और 4 उसके पैर में, ये U है, U, और ये 4 है। कॉपर सल्फेट मैंने क्या डाला, 2 to 3 drops of कॉपर सल्फेट। इसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या डालना है, नेक्स्ट आई विल ऐड हियर 10 drops of सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं।
बेटा मैंने पहले फूड आइटम डाली थी ना, फूड आइटम बोली मैंने मिल्क नहीं बोला, बट मैंने बोला वी एडेड फूड आइटम। कोई भी फूड आइटम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप एग के साथ भी कर सकते हो। 10 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका रिजल्ट क्या आया? दो चीजें हो सकती हैं, हमें नहीं पता इसमें प्रोटीन है कि नहीं। दो चीजें हो सकती हैं। अगर तो टेस्ट ट्यूब में ये जो आपने सारा कुछ डाला था, इसके बाद अगर ये वायलेट हो गया, एक केस हो सकता है, इसका कोई और कलर आ गया, कुछ भी वायलेट नहीं आया, इट मींस जिसमें वायलेट आया है प्रोटीन्स उसमें प्रेजेंट है। अगर वायलेट कलर नहीं आया, इट मींस प्रोटीन्स आर एब्सेंट। क्लियर? हमने तो दूध लिया, दूध में होते हैं प्रोटीन, इसलिए वायलेट कलर आ गया, राइट? अगर इसकी जगह हम कुछ और ले लेते जिसमें प्रोटीन्स नहीं है, तो क्या होता? वायलेट कलर नहीं आता। ये देखो कितना प्यारा वायलेट कलर आया हुआ है, कैन यू सी? राइट? यस सेवक, आपके साथ कौन बैठा हुआ है? हाँ जी, होपफुली इट इज क्लियर टू ऑल। दिस इज टेस्ट ऑफ प्रोटीन। ये मैंने आपको फटाफट से डायग्राम बना के बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जो चीज आपके याद करने वाली है वो सॉल्यूशंस के नाम कैसे याद करने हैं। CuSO4 को क्या बोलते हैं हम? व्हाट डू वी कॉल? कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉपर सल्फेट। और NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम। हाँ जी दिव्या, कोई भी मिल्क। NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम। Na का सिंबल होता है सोडियम और OH का होता है हाइड्रोक्साइड। क्लियर? Is this clear to all? Any doubt? इसमें कोई डाउट है? नहीं? Is there any doubt? Shiven Mahajan, if you want to do it at home, you should have these solutions that you don't have at home, right? These are available in the lab. Okay? Chaliye, if this is done, shall I erase this? Shall we move to requirements? चले, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स क्या है? Shall we move? मजा आया आज करके? Did you enjoy? चलिए, सेवक, is there any problem बेटा? सेवक, I think you are not comfortable. कोई डिस्टर्बेंस है? हाँ जी सेवक, is there any problem? Ma'am, no. Are you comfortable? Why I am feeling that someone is disturbing you? चलिए,
Okay, students, I am going to erase this. Hopefully it is made by all. Then beta, next है requirements of protein. प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कितना प्रोटीन चाहिए, रिक्वायरमेंट. What is the requirement of protein? बच्चे, the requirement it varies with age. इसका क्या मतलब है? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एज के हिसाब से कम होती रहती है, ज्यादा होती रहती है, राइट? मींस एवरेज एडल्ट पर्सन इट नीड्स, इसको कितना प्रोटीन चाहिए? 50-60 ग्राम्स, 50 to 60 ग्राम प्रोटीन पर डे, right? While growing children need more proteins. Growing children need more proteins, right? छोटे बच्चों को, आप जैसे जो बच्चे हैं जो ग्रो कर रहे हैं, जिनकी हाइट निकलनी है, जिनकी बॉडी बिल्डअप होनी है, उनको ज्यादा प्रोटीन्स चाहिए. जबकि जो हम लोग हैं, मम्मा पापा हैं जो आपके, जो एवरेज एडल्ट पर्सन्स हैं, दे नीड 50 to 60 grams of proteins per day. Clear? Is this clear to all? अब क्या होगा? What will happen if there is deficiency of proteins? अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, सबसे पहले अगर बच्चों में डेफिशिएंसी होगी, फर्स्ट केस है, अगर बच्चों को प्रॉपर, आपकी एज के बच्चों को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलते हैं, व्हाट विल हैपन? तो इट विल कॉज स्टंटेड ग्रोथ. स्टंटेड ग्रोथ मीन्स आपकी ग्रोथ कम होगी, रुक जाएगी, छोटे रह जाओगे आप. स्टंटेड ग्रोथ. नंबर 2, मेंटल रिटार्डेशन. इसका क्या मीनिंग होता है? मेंटल रिटार्डेशन मीन्स आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट भी नहीं होगी. मेंटल रिटार्डेशन विल बी देयर. यस श्वेन. मैम मैंने पूछना था, ग्रोइंग चिल्ड्रन को कितने ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए? शिवेन, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला. मैम ग्रोइंग चिल्ड्रन को कितने ग्राम खाना चाहिए प्रोटीन? मोर देन दिस, ज्यादा प्रोटीन खा सकते हैं वो, उतनी उनकी ग्रोथ होगी. ठीक है, जितना बॉडी को जरूरत है बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी का प्रोटीन आपके हेयर नेल्स वगैरह में निकल जाएगा, राइट? यस मैम, थैंक यू मैम. या ओके स्टूडेंट्स, deficiency of protein in children, it causes stunted growth and mental retardation. Mental retardation means जिन बच्चों की mental development नहीं होती. कई बच्चे, आप तो जैसे बहुत एक्टिव हो, कुछ बच्चे आपकी तरह समझ नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते, समझ नहीं पाते लोगों की बातें, that they are known as mentally retarded children, right? मायरा शर्मा. मैम प्लीज बेटा साइड, मैम मैं लिख रही हूँ, साइड हो जाओ थोड़ा सा. बेटा ऐसे थोड़ी बोलते हैं मैम को. यस प्रियांशु. हाँ जी बेटा. स्टंटेड ग्रोथ का क्या मतलब होता है? स्टंटेड मतलब कम हो जाना, रुक जाना. स्टंटेड ग्रोथ मींस ग्रोथ कम हो जानी या रुक जानी, राइट? यस. हाँ जी. उसके बाद एडल्ट्स में क्या होता है अगर ये डेफिशिएंसी एडल्ट्स में हो?
अगर बड़ों में ये डेफिशिएंसी हो जाएगी, ड्राई एंड रफ हेयर, जैसा कि मैंने कल बताया था, आपके जो बाल हैं उनमें भी प्रोटीन होता है, राइट? तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी एडल्ट्स में तो उनके बाल इफेक्ट होंगे, ड्राई एंड रफ हेयर। नंबर 2, प्री मैच्योर एजिंग। प्री मैच्योर एजिंग, इसका क्या मीनिंग है? मतलब उम्र से पहले बूढ़े हो जाना, या प्री मैच्योर ग्रेइंग कर लो आप, प्री मैच्योर ग्रेइंग एंड फॉलिंग ऑफ हेयर, premature graying and falling of hair. What does it mean? ग्रेइंग का क्या मतलब होता है? बालों का सफेद होना, मतलब जल्दी बालों का सफेद हो जाना और बालों का गिरना, ठीक है? कईयों के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। देन अनहेल्दी स्किन, unhealthy skin, right? स्किन हेल्दी नहीं रहेगी। Note it down hurriedly. Then on Monday, I will tell you how to write these tests in the practical file. एक practical और कर लेंगे हम, ठीक है? उसके साथ साथ हमने कर तो लिए, स्टार्च और प्रोटीन का है हमारी प्रैक्टिकल में, तो मैं आपको बता दूंगी वो कैसे लिखना है। एंड ऑन मंडे योर टेस्ट इज देयर, वो आपको व्हाट्सएप पे आएगा। नंबर 3, इसके बाद हम विटामिन शुरू करेंगे। मंडे से वी विल बी स्टार्टिंग विटामिन। यस मायरा बेटा, एनी डाउट? दिव्या, यस दिव्या। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैंने पूछना था, हमारे जब टेस्ट होंगे हमने करके आपको पीडीएफ में भेजनी है टेस्ट की? नहीं, आपने अपने पास रखना है, हम क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट? मैम मंडे को लेसन 1 का टेस्ट है। लेसन 1 का, ओके ओके मैम। एमसीक्यूज का, एमसीक्यूज फॉर्म में आएगा। यस कृतज्ञा। मैम मैंने आपसे पूछना था कि मैम जो टेस्ट हम करेंगे वो मैम जो ग्रुप में आएगा मैम, हमने वो आपको नहीं भेजना है? नहीं भेजना बेटा, मैंने सेम उसको बोल दिया है, ठीक है? यस एंजल। मैम जो हमारा टेस्ट आएगा वो टीचमेंट ऐप पे आएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में? व्हाट्सएप, ठीक है? ओके मैम। दिव्या ऑफलाइन कैसे हो सकता है? स्कूल तो आप आ ही नहीं रहे हो, इट विल बी ऑनलाइन। जब व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा तो इट विल बी ऑनलाइन, ऑफलाइन कैसे हो सकता है? निश्चय। यस बेटे। मैम टेस्ट की टाइमिंग्स क्या है? वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? आई विल सेंड द मैसेज इन द ग्रुप, ओके? हाँ जी, एनी अदर डाउट बेटा? इफ देयर इज एनी डाउट आस्क मी राइट नाउ। हरी आप, only 2 minutes are left. If there is any doubt, so let us start. Let us do that. Otherwise, I will be starting with vitamins. थोड़ा सा vitamins शुरू करेंगे। काव्या, yes बेटे? गुड मॉर्निंग मैम। मैम स्टंटेड ग्रोथ क्या होता है? हाँ जी, stunted growth means मैम स्टंट या ग्रोथ कम हो जानी, ओके?
बड़े नहीं होना। ओके मैम। कृतज्ञ, यस बेटा। मैम मैंने आपसे पूछना है कि मैम जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे एमसीक्यू के वो मैम चैप्टर के अंदर से आएंगे या फिर मैम जो बैक एक्सरसाइज में है? चैप्टर के अंदर से। यू आर नॉट स्मॉल किड्स नाउ, यू आर इन 6th स्टैंडर्ड, ग्रोन अप्स, बिग वंस। तो चैप्टर और नोट्स थॉरोली करने हैं आपने, एग्जाम्स के लिए भी, टेस्ट के लिए भी, राइट? इज दैट क्लियर टू ऑल? एनी अदर डाउट? No, Harman, we have not done vitamins. Vitamins we have to start. Yes, Myra. मैम वो जो आपने लिखा है मेंटल रिटेशन, उसका क्या मतलब होता है? क्या बेटा? मैम मेंटल रिटेशन। Mental retardation means mental development नहीं होनी। Retard का मतलब होता है कम होना। Mental retardation means mental development कम हो जानी। ओके, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपकी बॉडी ग्रो करती है, वैसे वैसे आप मेंटली भी डेवलप करते हो ना, आप मैच्योर होते हो। ठीक है, तो इसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, मेंटली डेवलपमेंट नहीं होती, बच्चा पीछे रह जाता है। ठीक है, हिरेन, हिरेन। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटे। मैम जो आप टेस्ट भेजोगे मैम वो आपको सेंड नहीं करना? क्या? मैम जो आप टेस्ट भेजोगे मैम वो आपको सेंड नहीं करना? नहीं करना, नहीं करना। ठीक है, एनी अदर डाउट? ओके मैम। एनी अदर डाउट?